Are you excited to hear from क्या आप Jesus? परमेश्वर से सुनने के लिए आप उत्तेजित हैं? Are you excited, Siliguri? सिलीगुड़ी, क्या आप उत्तेजित हैं? Wow, that's awesome. ये बहुत ही अच्छा बात है। May the Lord bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Amen. Let's turn our Bible. We are going to continue here from where we stopped yesterday night. और कल की रात हमने जहां रोका वहीं से हम सुनना जारी रखेंगे। Luke chapter 19 verse 2-3. लूका उसका 19 का जो है 1 से लेकर Luke chapter 19 verse 2 and 3. लूका उसका 19 का 2 और 3। Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector. और देखो एक व्यक्ति था जो जिसका नाम जक्कई था और वो मुखिया चुंगी लेने वाला था। He was rich and he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd. और वो नाटा था और वो यीशु को देखना चाहता था परंतु देख ना पाया। Zacchaeus was a chief tax collector. देखिए जक्कई एक मुखिया चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। He was very rich and wealthy man. वो बहुत ही धनी और बहुत ही ज्यादा एक बड़ा व्यक्ति था। One day as Jesus was passing through the city of Jericho, और एक दिन जब यीशु यरीहो के शहर से गुजर रहे थे as Zacchaeus heard about him, और जैसे जक्कई ने उसके बारे में सुना he wondered, he thought, he got excited and he decided he wanted to go and see who is Jesus. और उसके अंदर एक उत्तेजना आया और वो यीशु को देखना चाहता था। If someone will hear about Jesus, they will have a deep desire to see him. और अगर कोई यीशु के बारे में सुनता है उससे उसके बारे उसको देखने का एक उत्तेजना होता है। They would get such a deep desire to know him more. और उनके पास उसको जानने का एक इच्छा बढ़ जाता है। If you taste Jesus once in your life, definitely you cannot leave him. You want more of him. और एक बार जब यीशु को आपने चख लिया आप और भी अधिक यीशु को चाहना शुरू कर दोगे। Saul before became Paul, देखिए साउल पौल बनने से पहले he was so religious. वो इतना धर्मी व्यक्ति था। He was so religious. वो इतना धर्मी व्यक्ति था And he was so against the Christianity. और वो मसीहत का बहुत विरोध He hated Jesus. वो यीशु से नफरत करता He था। was went after to persecute the Christians. वो मसीहों को जाके सताता था He got a legal permission from the government. और उसको जो है सरकार की ओर से एक जो है वहाँ अनुमति मिला। As he is going towards the Damascus to persecute Christians. और जैसे वो दमस्कस की ओर मसीहों को सताने जा रहा था As the sun is brighter in the afternoon, और एक जैसे कड़ी धूप में सूरज चमक रहा है suddenly a light, a blinding light shine and appeared on the way towards Damascus. और दमस्कस की राह में अचानक से एक प्रकाश उतर आया Oh, it struck Paul. और उसने पौल की ओर अपनी चमक को प्रकट He की fell on the ground और वो जो है जमीन में गिर गया as he is having an encounter with Jesus. और जैसे वो प्रभु के साथ मुठभेड़ कर He रहा है cried out from his heart, और वो अपने हृदय से रोने लग गए। "Oh Lord, who are you? हे प्रभु तू कौन है? Hey, Lord, who you are?" ओ प्रभु आप कौन है? And the word sound appeared. और फिर एक आवाज सुनाई दी Jesus said, "This is Jesus. I am Jesus whom you are persecuting." और यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तुम सताते हो। As he met Jesus on the way to Damascus, और जैसे दमस्कस की राह में वो यीशु के साथ मुठभेड़ हुआ उसका he surrendered his life. उसने अपने जीवन को समर्पण He किया। was a hater of Jesus. वो यीशु का जो है नफरत करने वाला But as he saw Jesus, as he met Jesus, परंतु जैसे वो यीशु के साथ मिला he understood there is none like him. There is no one as good as my Jesus. और वो एक बात को समझ पाया कि मेरे यीशु के समान और कोई दूजा नहीं है। My dear, you may be a person who hates Jesus, but tonight I want to tell you, Jesus
Jesus is here and he conducted this meeting for you to tell you how much he loves you. हे प्रियो, हो सकता है कि आप यीशु को नफरत करते हो, परंतु आज यीशु का अनुग्रह, ये मीटिंग संचालन होने का कारण एक ही है कि आप सुन पाए कि यीशु आपको बहुत आयत से प्यार करता है। How he can even love the haters. और ये कैसे यीशु अपने जो है नापसंद करने वालों को भी प्रेम कर सकता है। Who is this Jesus? कौन है ये यीशु? My dear, he only lived 33 years on this earth. प्रियो, वो केवल 33.5 साल इस संसार में थे। He never traveled more than 100 miles. वो जो है 100 मील से ज्यादा यात्रा नहीं किए। He never had any formal education. उनके पास उतना जो है पढ़ाई लिखाई नहीं था Yet फॉर्मल। 2000 years later, till now, generations after generations talking about that Jesus. परंतु 2000 पीढ़ी से आज तक पीढ़ी पीढ़ी लोग यीशु का नाम पुकार रहे हैं। Till now, people are talking about Jesus. आज तक लोग यीशु को पुकार रहे हैं। Who is this Jesus? कौन है ये यीशु? One day when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, और एक दिन जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी को जा रहा था, he asked to his disciples, उसने अपने चेलों से पूछा, who do say the men about me? लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? The disciples began to suddenly one after another began to say, और वो चेले एक बाद दूसरा कहने लग गए। some say you are the prophet Elijah. कोई कहता है कि तू नबी है एलिया। Some say you are the John the Baptist. कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने Some वाला say है। you are Jeremiah. कोई कहता है कि आप यिर्मयाह हो। Some say you are the prophet of one of the prophet. कोई कहता है कि आप एक भविष्यद्वक्ता हैं। Jesus said, okay, यीशु कहता है ठीक है। who do you say I am? अब तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? Everybody became silent. सब खामोश हो गए। Out of that silence, और उस खामोशी के one अंदर man, Peter, और एक व्यक्ति he पतरस, loudly said, वो ऊंची आवाज में पुकार he कर answered, कहने you लगा, are the Christ, the Son of a living God. तुम मसीह हो, परमेश्वर के जीवित पुत्र। My dear, Jesus is Christ. मेरे प्रिय, यीशु मसीह है। He is the Messiah. वो मसीहा है। He is the sent one from heaven to save us. वो स्वर्ग से भेजा गया है आप लोगों के लिए। He is our Redeemer. वो हमारा छुड़ाने वाला है। He is our Savior. वो हमारा छुटकारा देने वाला है। Jesus is the God who manifested in the human to save you and me. और यीशु वो खुदा है जो मनुष्य का रूप धारण करके आया ताकि आपका मेरा छुटकारा मुक्ति हो सके। What my Bible says about Jesus. मेरा बाइबल यीशु के बारे में क्या कहता है? Who is he? कौन है वो? He is the Jesus is the Lamb of God. यीशु परमेश्वर का मेमना है। He didn't come to judge you. वो तुम्हें डराने को नहीं आया। He came to take your place. वो तेरे स्थान को लेने के लिए आया। Bible says, बाइबल यूं कहता है, behold the Lamb of God to take away the sin of the world. देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के सारे पापों को उठा ले जाता है। Because of our sin, हमारे पापों के कारण we are supposed to die with sin. हम पाप में मरने को थे। When I am saying about death, और जब मैं मृत्यु की बातें कर रहा it's हूँ, not the death of our just body. देखिए केवल हमारे शरीर की मृत्यु की बात I'm नहीं, talking about the everlasting death. मैं आपसे अनंत काल की मृत्यु के बारे में कहता My हूँ। dear, we live on this earth for a short time. हम इस संसार में थोड़े समय के लिए जी रहे हैं। After our death, हमारे मृत्यु के there बाद is an eternal life. देखिए एक अनंत काल का जीवन And है। it depends on where you have to spend either heaven or hell. It depends on the decision that you take. और देखिए, और जो आप निर्णय लेते हैं उस बात पे ये बात
बात निर्धारित होती है कि आपका जीवन स्वर्ग की ओर जाएगा या नरक की ओर जाएगा। Eternity is as truth as the light. और जितना ये ज्योति, जितना ये प्रकाश सत्य है, उतना ही अनंत काल सत्य है। My dear human, no one couldn't enter the heaven by our deeds or our strength. कोई भी मनुष्य अपने बलबूते और अपने काम से जो है स्वर्ग नहीं जा सकता। Our sin, our disobedience separated us from God. देखिए हमारा पाप, हमारे तो जो है हर एक प्रकार के अनाज्ञाकारिताओं के कारण जो है हम प्रभु से दूर हो गए। As I said yesterday, जैसे मैं कल कह रहा था, the wages of sin is death. पाप का दंड मृत्यु है। And we all were going towards that hell. और हम सब उस नरक की ओर जा रहे हैं। But Jesus is the Lamb of God. परंतु यीशु जो खुदा का मेमना है, And came and he took all the burdens of our sin. वो आके हमारे सारे पाप के बोझों को उसने ले The लिया। Lamb of God. वो परमेश्वर का The मेमना, innocent Lamb. वो जो निर्दोष मेमना The था, Lamb which is unblemished. वो मेमना जिस पर कोई दोष नहीं था। The people who trial them. वो लोग जो उसको सताए, उसको जो है बांधे, Court trial, executing और trial. जो उसको जो है वहां उसके ऊपर जो है ट्रायल कर रहे थे। They were, I mean, when they were trialing, देखिए जब उसको जो है वो परीक्षा ले रहे they थे, said, उन्होंने कहा, I mean, even the Pontius Pilate, who were about to, declare, for his sentence. देखिए पिलातुस वो जो उसको सजा देने को था वो भी कहता है, He said, I can't see any sin in him. वो कहता है कि इस पर तो मैं कोई भी दोष नहीं देख पा I रहा, couldn't, find any fault in him. मैं इसके ऊपर कोई दोष नहीं देख पा रहा। They brought many witnesses against Jesus. यीशु के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे सबूतों को लाया, Nobody could, prove any fault in him. परंतु ये सारे गवाहों में से कोई उसे दोषी करार ना कर पाया। How they could find any fault in Jesus, the man, the God, the Son of God, who healed many, who wipe out tears many, who transform many lives. कैसे कोई परमेश्वर के पुत्र में जो है कोई दोष निकाल सकता है, जिसने बहुतों को चंगा किया, जिसने बहुतों को जो है उठाने का मदद किया। That unblemished, sinless Christ, sinless Lamb. वो बेदाग परमेश्वर का मेमना, When hundreds of calves, thousands of calves' blood sacrifices couldn't wash out our sin, the Lamb of God, the innocent, the pure blood which shed on the cross 2,000 years ago for you and me, wipe out every sin of mankind. जब हजारों जो है बलिदाने हमारे पापों को धो ना पाया, उस समय वो निर्दोष परमेश्वर का मेमना 2000 साल पहले क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके लहू के द्वारा आपके मेरे पाप जो है क्षमा हो जाते हैं। He went towards Golgotha like a lamb who is slain. वो गोलगत्था की ओर ऐसे गया मानो परमेश्वर का मेमना जो बलि करने पर था। When they were executing him, जब लोग उसको जो है उसको परीक्षा में डाल रहे थे, उसको रणनीति कर रहे when थे, they were whipping him, जब उसको कोड़े मारे जा रहे when थे, he was carrying that heavy cross and falling and rising and falling, जब वो भारी क्रूस को उठाकर वो गिर रहा था, उठ रहा था, when they were nailing to Jesus, जब यीशु को उन्होंने कांटी मारा, he became silent just like a lamb. वो एक मेमने के समान चुपचाप रह गया। The Lamb of God, परमेश्वर का मेमना slain for you and me. जो तेरे मेरे खातिर बलिदान हुआ, He carried all our sin. जिसने आपके और मेरे सारे पापों को उठा लिया, He carried all the burdens of our sin. जिसने हमारे सारे पाप के बोझों को उठा लिया, He took our place.
place. उसने हमारा स्थान ले लिया। Jesus Christ is the Lamb of God. यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना है प्रियो। Then who is Jesus? कौन है यीशु? He is the Lamb of God. वो परमेश्वर का मेमना है। That's not the end, my dears. वो केवल अंत नहीं है प्रियो। Jesus is the light of the world. यीशु संसार की ज्योति है। Jesus is the light of the world. यीशु संसार की ज्योति है। Bible says Jesus said himself, I am the light of the world. बाइबल इस प्रकार से कहता है कि यीशु स्वयं ने कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ। When people are in darkness, देखिए लोग जब बुराई के अंदर हैं, wondering how and where to go, जब लोग जो है भूले भटके हैं, उनको पता नहीं कि उनको कहाँ जाना है, how they will get moksha. कैसे उनको मुक्ति उद्धार मिल सकता है। They were in a clueless situation. वो ऐसे अवस्था में थे जहां उनको कुछ नहीं पता। Jesus came. परंतु यीशु आया। He showed the way, the light. यीशु ने उनको मार्ग, वो ज्योति दिखाया। Many live in darkness, my dears. बहुत सारे लोग अंधकार में जीते हैं प्रियो। Darkness of sin, पाप का अंधकार, darkness of addiction, लत का अंधकार, darkness of loneliness, Akhele- darkness of confusion. अकेलेपन का जो है अंधकार, भ्रम का अंधकार। If you are a person अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं who is living in darkness, जो अंधकार में जीता है, today, my dear, I want to tell you a good news. प्रियो आज एक शुभ संदेश आपको देना चाहता हूँ। Jesus can become a light for you. यीशु तेरे लिए एक ज्योति बन सकता Some of है। us are living in absolutely darkness. कुछ लोग जो है पूरे अंधियारेपन में जी रहे There हैं। is no light in your home. आपके घर के अंदर कोई ज्योति नहीं I है। am not talking about this light. मैं इस लाइट के विषय नहीं बोल रहा, I am talking about the light which is in your life. और मैं उस ज्योति के बारे में बोल रहा हूँ जो तेरे जीवन के अंदर होना है। In the family you are living, there is no light. तू अपने परिवार के अंदर जी रहा है, परंतु There is उसमें no कोई उजाला love. नहीं है। There is no oneness in our कोई home. घर के अंदर कोई प्रेम, कोई एकता की बात नहीं है। There is no, I mean, you don't want to live in your home. आप अपने घर में जीना नहीं चाहते। You want to stay out of your home most of आप time. अपने घर के बाहर रहना चाहते हैं Some बहुत of us are समय। entering into our home. We feel lot of headache, lot of getting angry, getting irritated. कोई अगर हमारे घर में आता है तो हमारा सिर दर्द होता है, हमें गुस्सा लगता Some of है। us are not able to sleep in our home. कुछ लोग घर के अंदर सो भी ठीक से नहीं पाते। You are having a fear of death, the fear of darkness. आपके अंदर अंधकार का और मृत्यु का जो है डर है। Constantly darkness is following, shadowing your life. निरंतर वो अंधकार तुझे मारते रहता है। You are saying, Lord, I am not able to see anything properly. आप कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी बातों को सही रीति से नहीं देख पा रहा। But my dear, when Jesus enters into our life, our family, our house, परंतु प्रियो जब यीशु हमारे घर, हमारे परिवारों के अंदर आता the है, darkness will leave. वो अंधकार छोड़ के When जाता है। light comes, जब ज्योति आता है, darkness must have flee. अंधकार को दूर भागना There ही is होगा। no option. कोई चुनाव And नहीं I है। believe tonight the light of the world is entering many houses, many lives, many families. परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वो ज्योति आज कुछ जीवनों के अंदर प्रवेश करने जा रहा है, कुछ घरों के अंदर प्रवेश करने जा रहा है। I believe tonight the fight with the darkness is going to get over from your life because the light Jesus is come and entering into our और मैं life. विश्वास करता हूँ कि जितने अंधकार से बहुत समय तक लड़ रहे हैं, आज उस अंधकार को जाने का समय आ चुका है, क्योंकि आपके पास वो ज्योति आ चुका है। My Bible says Jesus is the good shepherd. मेरा बाइबल कहता है कि यीशु अच्छा चरवाहा है। He is a good shepherd. वो अच्छा चरवाहा है। A shepherd चरवाहा who does not run away. जो दूर नहीं भागता, A shepherd एक चरवाहा who does not abandon his sheep. जो अपने भेड़ों को त्यागता नहीं। He is a shepherd who will lay down his life for his sheep. एक ऐसा चरवाहा जो अपने जीवन को अपने भेड़ के लिए देने को तैयार My है। dear, Jesus is the good shepherd who will not leave you nor abandon you. मेरे प्रियो यीशु वो अच्छा चरवाहा है जो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, तुझे कभी
नहीं त्यागेगा। Even the hard times, when the storms hit in your ship, when the winds and waves will begin to hit against your boat, when your life is shaky, when the uncertainty hit, when confusions are happening, when there's no one standing with you, that time the good shepherd Jesus will be with you and he will help you to come out of it. और देखिए, जब तू किसी मुश्किल हालातों में जा रहा है, लगता है कि आंधी तूफान तेरे जीवन के विरुद्ध आ रहा है, उस समय लगता है कि कोई चीजें ठीक नहीं चल रही है, उस समय के दौरान भी वो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह तुझे नहीं छोड़ता है। My dear, some of us are going very hard times in our life. ओ प्रियो, बहुत है ऐसे जो अपने जीवन में कठिन समयों से गुजर रहे हैं। Some of us are experiencing the hardest times in our life. कुछ लोग अपने जीवन के सबसे मुश्किल समयों को सामना कर रहे हैं। It seems like your ship is completely shaking. ऐसा लग रहा है मान लो तेरा जहाज पूरे रीति से हिल चुका है। It's very hard for you to face every day. ओ हर दिन सामना करना तेरे लिए मुश्किल सा लग रहा है। The creditors are knocking in your home. वो कर्ज लेने वाले तेरे घर के सामने जो है वो खटखटाता The रहा है। bank is coming and coming again and again and you don't have an answer. ओ वो बैंक वाला बार बार तेरे घर में आ रहा और तेरे पास कोई उत्तर नहीं है। Your body is getting weak day by day. तेरा शरीर प्रतिदिन कमजोर बन जा रहा है। Amen, amen, amen. You are facing very hard things in your marriage. तेरे विवाह के अंदर कठिन बातों को सामना कर रहा है। Some of you are struggling even to pay your children's school fee. कुछ लोग अपने बच्चों का स्कूल फी देने को लिए भी संघर्ष When कर your रहे हैं। child is coming and asking for school fee, जब तेरा बच्चा आके कहता है स्कूल फी के बारे में, you are comforting him and saying, kal denge, but your heart is breaking. ओ आप उसको दिलासा देते हुए कहते हैं कि कल हो जाएगा बेटा, परंतु अंदर ही अंदर आप टूटे रहते हैं। Some of you are going through mentally in depression. कुछ लोग मानसिक रीति से तनाव में हैं। You're not able to share your burden, your pain to someone. देखिए, किसी को अपना बोझ, अपना पीड़ा आप बता नहीं पा रहे हैं। From outside, everybody is thinking, everything is nice. बाहर से देखे तो सबको लगता है कि सब अच्छा चल But रहा है, inside, परंतु अंदर you're facing the biggest battles in your life. अपने जीवन का सबसे कठिन युद्ध लड़ रहे हो। Some of you are, with your wept tears, you are wetting your pillows. कुछ लोगों का सिरानी उनके आंसुओं से भीग चुका है। When you had good money, when you had good health, when you had everything, your friends was with you, your family members were with you, but one after another, those good things were leaving. People also, your friends also left you. और जब तेरे पास तेरा पैसा, रुपया, दौलत था, बहुत सारे दोस्त तेरे पास थे, बहुत सारे लोग तुझे पूछने को थे, परंतु जब एक एक करके सब जाने लगे, ओ तब जो तेरा खास दोस्त भी था, तेरे परिजन भी तुझे छोड़ने लग When you गए। had everything, when you had power, जब तेरे पास शक्ति था, हर एक बातें थी, everything was with you. सब तेरे पास था। Tonight, परंतु some आज of you रात, are listening us, आज कुछ लोग हमें who सुन is रहे हैं completely broken and shattered. जो पूर्ण रीति से टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। More than you lost the money, देखिए, पैसे खोने से ज्यादा your heart is breaking by seeing the people whom you trusted, you thought they will be with you, they left you. आप इस बात से ज्यादा टूटे हुए हैं, पैसे रुपयों से भी ज्यादा, कि जिस व्यक्ति के पास आप भरोसा करते थे कि आपके बुरे समस्या में वो तेरे साथ रहेगा, वो आपके साथ नहीं है। The people with you, one missed call would have stand in front of your door. Now one after another you are calling many times, they are even not bothering to take that. ओ एक बंदा जो जिसको जब तू मिस कॉल करता वो तेरे दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता था, परंतु एक एक करके ऐसे लोग तुझे छोड़ने लग गए। And it is very hard for you. और ये आपके लिए बड़ा मुश्किल My dear, है। people will leave us. प्रियो, लोग हमें छोड़ सकते हैं। Many of them will stand when everything is there. देखिए, जब सब कुछ है, बहुत सारे लोग खड़े होंगे, But Jesus, the good shepherd, परंतु यीशु जो अच्छा चरवाहा है, he will never leave you nor forsake वो you. ना तो कभी तुझे छोड़ेगा, ना कभी तुझे त्यागेगा। He assured you. मैं आज आपको आश्वासन देता He हूँ। assured you, देखिए, वो आपको आश्वासन देता है, I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथों की तरह ना छोड़ूंगा, I will be with you
always. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। My dear, the person whom you loved the most, you trusted the most, you thought that person will be with you, they will marry you, they will be with you ever. And even some of them left before marriage, some of them left you after marriage. People are like that. But I want to introduce a God whose name is Jesus Christ. He is the good shepherd. Where you are in wilderness, where you are in the midst of a hard sea, whether you are in the hardest time of your life, He will not leave you nor forsake you. प्रियो, कई बार लोग हमें वायदा देते हैं कि वो हमें ना छोड़ेंगे। कोई लोग शादी से पहले वादा करते हैं कि ना छोड़ेंगे, कोई शादी के बाद वायदा करता है कि वो कभी ना छोड़ेंगे, परंतु कई बार वो भी हमें छोड़ जाते हैं। हमारा हृदय मानो टूट सा जाता है। परंतु आज मैं आपको एक ऐसे प्रभु को परिचय करना चाहता हूं जिसका नाम है यीशु मसीह, जो सच्चा चरवाहा है। किसी भी हालत के अंदर, किसी भी परिस्थिति के अंदर वो तेरा साथ, तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। आज रात कुछ लोग को हिवाब आशा वापस मिलने जा रहे हैं। बहुत आमीन, लोग के धोखे के कारण, जीवन के परिस्थिति के कारण, बहुत दुख में टूटे दिल लेके जाने वाला कुछ लोग को आज रात यीशु मसीह अच्छा चरवाहा आपके हाथ को पकड़ने जा रहे हैं, आपको हाथ को पकड़ने जा रहे हैं। He is going to give you a new hope. My dear, everybody thought you are finished, but God is saying, I am going to hold your hand and we are going to walk for a new beginning. मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपने अपना आशा छोड़ दिया और आपको लगा कि मेरा यात्रा यही खत्म हो गया, परंतु वो सच्चा चरवाहा तेरे हाथों को पकड़ने जा रहा है और वो तेरा अगुवाई करने जा रहा है। He is the shepherd does not abandon his sheep. देखिए, वो ऐसा चरवाहा है जो अपने भेड़ों को ना छोड़ता है। As Jesus is the good shepherd, जैसे यीशु सच्चा चरवाहा है, He will guide you वो आपको जो है अगुवाई करता है and He will take you the right step, और right वो path, सही दिशाओं के अंदर तुझे ले जाता and है, He will protect you. तेरी सुरक्षा करता है। Some of you are living in a danger. कुछ लोग ऐसे खतरों के अंदर हैं, But God is saying, do not worry, my dear. परंतु प्रभु कहता है Don't कि need मत to डरना live. प्रियो, Don't need to live a fearful life. आपको एक डर का जीवन जीना Good जरूरी shepherd is holding your hand. नहीं। वो सच्चा चरवाहा तेरे हाथों को पकड़ा He हुआ is है, going to guiding you. वो आपको अगुवाई करेगा, And He will protect you. वो तेरी सुरक्षा करेगा, He will carry you. वो तुझे थामे रखेगा। A good shepherd, एक सच्चा when चरवाहा his sheep get a wounds and not able to walk, जब उसे एक भेड़ को घाव लग जाता है और वो चल नहीं पाता he है, will not leave that bird in a wilderness or jungle. देखिए वो उस भेड़ को जो है जंगल में ऐसे ही छोड़ के नहीं आगे बढ़ता। That good shepherd वो अच्छा चरवाहा will carry that sheep, वो उस भेड़ को उठाता है, keep on his shoulder. उसे अपने कंधे पे रखता He है will start to walk और towards वो the home. उसे लेके घर की ओर My dear, चलने some लगता of you है। are in that situation that you are not able to walk by yourself. प्रियो, कुछ लोग ऐसे अवस्था के अंदर हैं जो अपने आप में ऐसे नहीं चल पा रहे हैं। You don't have that strength in your heart because of the things you are facing. जिन बातों को आप सामना कर रहे हैं, इस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे The हैं, good shepherd is going to carry you in his shoulder. परंतु वो सच्चा चरवाहा आपको अपने कंधे में I उठाएगा। am seeing some of you are with the tears. You are crying and you got tired with your hard life. और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग अपने मुश्किल जीवन में थक चुके हैं And crying and crying. और बहुत ही ज्यादा रो रहे But हैं, tonight the shepherd परंतु आज की रात वो is चरवाहा wiping your वो tears. तेरे आंसुओं को पहुंच रहा He है, is carrying you in his वो shoulder. तुझे अपने कंधे में उठा रहा है। And a good shepherd is not carrying that wounded sheep. और वो अच्छा चरवाहा केवल उस घाव से भरे हुए उस भेड़ को उठा केवल ना रहा है, He will take him to the home, his shelter. वो उसे घर में उसके छाई में ले जाएगा And he will wipe out his wounds. और वो उसके घावों को He will do पोंछेगा the treatment
treatment. वो उसको इलाज करेगा And he will restore that sheep. और उस भेड़ को वो पुनर्स्थापित करेगा। शैतान लोग अपना परिस्थिति बोल रहे, अब बहुत टूट गया, सब कुछ बहुत कुछ कदम हो गया, अभी आपका बच्चे वापस आना मुश्किल है, अभी आपका पारिवारिक जीवन इतना टूट गया, वापस आना मुश्किल है। बट आज रात प्रभु के अभिषेक होकर मैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके पीढ़ियों के ऊपर, आपके बिजनेस, आपके सेवकाई के ऊपर भविष्यवाणी करने हैं। आप वापस आने जा रहे हैं, प्रभु सब कुछ आपको वापस पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। Because the good shepherd, he is the restorer. क्योंकि वो अच्छा सच्चा चरवाहा जो है पुनर्स्थापित करने वाला है। And he is going to restore your broken family. और तेरे टूटे हुए परिवार को वो पुनर्स्थापित करेगा प्रियो। He is going to restore whatever devil broken from you in your life. जो कुछ भी शैतान ने तेरे जीवन से लिया है वो उन बातों को लौटाएगा। As a good shepherd, एक अच्छे चरवाहा होने के he will नाते fight for you. वो तेरे लिए लड़ेगा। He will fight for you. वो तेरे लिए लड़ेगा। When a wild animal will come and try to, tear down the sheep. और देखिए जब वो जंगली जानवर आके वो उस भेड़ को मार खाने का प्रयास करेगा, An ordinary shepherd, a bad shepherd may run away. एक साधारण सा चरवाहा भाग जाएगा शायद, But a good shepherd, परंतु एक अच्छा he will चरवाहा stand there. वो वहां खड़ा रहेगा। When his sheep is all around, all alone, देखिए जब उसका भेड़ अकेला है, surrounded by enemy who is trying to tear him apart, देखिए tear them apart. जब शत्रुओं के सामने घिरा है, जब उसके शत्रु उसे खाने को है, When his sheep is facing death all alone, जब उसका भेड़ मृत्यु का सामना कर रहा है, helpless, not able to come out, get saved from that situation. वो उस परिस्थिति के अंदर से जब वो खुद में निकल ना पाए, Good shepherd will appear there. एक अच्छा चरवाहा वहां प्रकट होगा And he with all his strength, और अपने पूरे बल के he will साथ begin to fight for his sheep. वो अपने चरवाहा वो भेड़ के लिए He लड़ेगा। will not allow those, cruel animals to touch his sheep. और देखिए वो उन जो है जंगली जानवरों को अपने भेड़ को छूने ना देगा। My dear, might be you are all alone in your battle. प्रियो हो सकता है कि तू अपने युद्ध में अकेला है, You feel you are so big and so weak. आपको लगता है कि आप थक चुके हैं, Nobody is there to say a fight for you. तेरे लिए लड़ने को कोई नहीं है। Not only for fight, even to say a word. हो सकता है केवल लड़ना नहीं, तेरे लिए एक शब्द बोलने के लिए भी कोई ना हो। In that situation, उस हालात के अंदर tonight the good shepherd आज की रात वो अच्छा is चरवाहा going to fight for you. वो तेरे लिए लड़ने जा रहा है। God is with you, who can be against you? अगर परमेश्वर तेरे साथ है, कौन तेरा विरोधी ठहर If सकता है? God is there for you, who can be against you? अगर परमेश्वर तेरे साथ है, कौन तेरा विरोधी बन सकता है? Tonight, आज की रात Lord of hosts, वो सेनाओं का यहोवा Jesus Christ is going to come with his mighty angels to fight for you. आज यीशु मसीह अपने शक्तिशाली दूतों के साथ तेरे लिए लड़ने को आवेंगे। Tonight he is going to show to you, prove to you, you are not alone in this battle. I am with you. आज की रात वो साबित करना चाहते हैं कि इस युद्ध में तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। You are fighting all alone with cancer. You are fighting all alone with many diseases. Every night and day, you are carrying that pain all alone. Nobody, your relatives, doctors couldn't help you at a point. हो सकता है कि तू अकेले उस कैंसर से लड़ रहा है, उस बीमारी से लड़ रहा है, तेरा डॉक्टर, तेरा प्रियजनों ने भी तेरे ऊपर हार मान चुका होगा। My dear, हे प्रियो, you are all alone, surrounded by all the cruel demons. ओ आप उन जो है दुष्ट आत्माओं से हर एक जगह घिरे हुए होंगे। You are facing battles against the witchcraft. जो है जादू टोना के विरुद्ध युद्ध का सामना कर रहे होंगे। The alcoholic addicted husband is every day beating you. हो सकता है वो शराब पीने वाला पति हर दिन तुझे मारता होगा। The children you whom you loved the most and grew them. ओ वो बच्चा जिसको आपने इतने प्यार से बढ़ाया, Now they also got
addicted. अब वो भी लत के अंदर पड़े हुए They हैं। also coming and raising hands against you. अब वो आके तेरे विरुद्ध में ही हाथ उठाते हैं। You are helpless. आप बिना सहायता You के are हैं। saying, I don't have a strength to die, kill myself. I will live. How much? There is a life. I will live like this and I'm going. My life is, my fate is like this. Always I will be in pain. आपको लगता है कि आपके अंदर मरने तक का बल नहीं है, आप अंदर से कमजोर हो पड़े हैं और आप कहते हैं कि नहीं, अब ऐसे ही परिस्थितियों को मैं स्वीकार करके अपना जीवन जीऊंगा और My dear, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। Good shepherd Jesus is going to come to fight for you. हे प्रियो, वो सच्चा चरवाहा यीशु तेरे लिए लड़ने को आ He रहा है। can transform your alcohol husband. वो तेरे शराबी पति को बदल सकता है। He can bring out from addiction of your children. वो तेरे बच्चों को उन लतों से निकाल सकता है। He can save you from the hardest situation. तेरे मुश्किल हालातों के अंदर से वो तुझे बचा सकता He है can save you from every demonic attack. और एक दुष्ट आत्माओं के आक्रमण से वो तुझे बचा सकता है। Tonight, Jesus, the good shepherd, is coming to fight for you. आज वो सच्चा चरवाहा यीशु मसीह तेरे लिए लड़ने को आ रहा He is है। going to prove that you are not alone. वो साबित कर रहा है कि तू अकेला नहीं है। Jesus यीशु is the shepherd वो चरवाहा है who will protect, who will care for you, who will carry you, who will fight for you, who will be with you forever. यीशु वो सच्चा चरवाहा है जो तेरे बारे में फिक्र करता है, वास्ता करता है, जो तेरे बारे में चिंता करता है, जो तुझे बचाएगा। Jesus said, I am the Jesus. The Bible says Jesus is the wine, the true wine. बाइबल कहता है कि यीशु सच्चा दाखलता है। Jesus said, I am the wine and you are the branches. यीशु कहता है कि मैं जो है डाल हूँ और मैं जो है साची दाख हूँ और तुम उसके लताएं हो। He is the wine tree वो जो है सच्चा दाखलता and we है, are the branches. हम उसकी डालियां हैं। What it means? इसका मतलब क्या है? Without him, उसके बिना life is dry, जीवन मरासा है, empty and fruitless. खालीपन फल नहीं है। But with him, परंतु उसके we will साथ bear much fruit. हम और फलवंत बन सकते We हैं। will grow, flourish, and we will enter into our full destiny. हम फलवंत होंगे और अपने पूरे मंजिल के अंदर प्रवेश करेंगे। I was a pain for my parents once. प्रियो, एक समय मैं अपने माता पिता के लिए दर्द का I कारण was था। a fruitless. मेरे पास कोई फल नहीं था। I was in living an empty and dry life. मैं खालीपन का, सूखापन का जीवन But जीता। 2007 December 7, 2007 दिसंबर 7 I had an encounter with this living Jesus. मेरा जीवित यीशु के साथ मुठभेड़ As a हुआ। young college kid, एक जवान कॉलेज के बच्चे के I रूप was enjoying the old worldly thing. में मैं सारे सांसारिक बातों का आनंद लेता I था। thought cigarette, alcohol, this is entertainment, this is happiness. Amen, amen. This can give me the best pleasure. और मैं सोचता था कि नशों की बातें, वो विभिन्न बातें मुझे और भी ज्यादा मनोरंजन मेरे जीवन में But देंगी। I didn't have any peace in me. परंतु मेरे अंदर कोई शांति ना थी। I was struggling in studies. मैं पढ़ाई लिखाई में I was संघर्ष कर रहा struggling था। in my family. मेरे परिवार में संघर्ष कर रहा I था। was struggling in every area of my मेरे life. जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष कर But रहा था। Jesus, परंतु यीशु the true wine, वो सच्चा came दाख into my वो life. मेरे जीवन He में आया। changed my life. उसने मेरे जीवन को Once बदला। I was paying for my parents. एक बार मैं अपने माता पिता के But लिए दर्द था, as he came, परंतु जैसे वो आया began to change my life. उसने मेरा जीवन बदल दिया। He made me blessing for thousands and thousands of people. उसने मुझे हजारों हजारों लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना He दिया। began to flourish my life. वो मेरे जीवन को फलवंत बना He दिया। took away my emptiness. मेरे खालीपन को ले लिया He उसने। took me into my destiny. उसने मुझे मेरे मंजिल तक My dear, as Jesus as the wine, प्रियो, जैसे यीशु वो दाख है, as we are the branches, जैसे हम उसके लते हैं, He can strengthen us. वो हमें बल दे सकता You है। may feel weak, हम कमजोरी but पर tonight महसूस if कर you सकते trust हैं, this Jesus, परंतु आज अगर उस यीशु को He is विश्वास going to करो, strengthen
strengthen you. वो तुझे नया बल देगा, He is going to strengthen you. वो तुझे बल देगा। That time I thought I cannot come out from that addiction, उस समय smoking, drinking alcohol. मैं सोच रहा था उस समय उस शराब से, उस सुट्टेबाजी से मैं बाहर नहीं But निकल as सकता। Jesus came into my life, परंतु जैसे यीशु मेरे जीवन He में आए, gave me the strength to come out of those addictions. उन्होंने मुझे वो बल दिया कि मैं उन लतों से बाहर निकल And I पाऊं। tell you, और मैं कहता हूँ there आज is nothing like Christian life. मसीह जीवन जैसा कुछ भी नहीं My है। dear, what alcohol, what drinks, smoke can give, I know. But this Jesus, a life in Christ, is such a joyful life. There is nothing like live as a child of God. मुझे पता है ये शराब, ये नशा क्या देता है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ उससे भी उत्तम यीशु अगर आपके पास है ना, वो आपको ऐसा आनंद का जीवन दे सकता है जो आपने कभी सोचा ना हो। Some of us are hearing us tonight. कुछ लोग आज की रात हमें सुन रहे हैं। You are living you are thinking you are living an empty life. आपको लगता है कि आप खाली जीवन जी रहे You are हैं। nuisance for this society. आप इस समाज के लिए जो है ऐसे ही व्यर्थ हैं। You आपको are लगता है, troublemaker for your family. आपको लगता है अपने परिवार के लिए समस्या My बनाने dear, वाले if you हैं। can believe this Jesus, try once in your life this Jesus. परंतु एक बार यदि इस यीशु को अपने जीवन में चख कर देखो, He can make you a fruitful and a blessing for many. वो आपको बहुतों के लिए फलवंत बना सकता As a है। wine, He is our strength, He is our source. देखिए एक दाखलता के कारण वो हमारा स्रोत है, वो हमारा बल है। He is our life supply and देखिए nourishment. वो हमारे जीवन को देने वाला स्रोत है। And tonight, और आज की He is रात going to nourish our life. वो हमारे जीवन को पालन पोषण देगा। Hallelujah. Hallelujah. Who is this Jesus? कौन है ये यीशु? He is not only just true wine. वो केवल सच्चा दाखलता नहीं है। Jesus is the resurrection and the life. यीशु पुनरुत्थान और जीवन भी है। Not just a life, केवल जीवन नहीं, not just a power, केवल सामर्थ नहीं, not just a healing. केवल चंगाई He नहीं। said, I am the resurrection and the life. वो कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान, मैं जीवन हूँ। Which means इसका मतलब क्या that है? cannot stop him. कि मृत्यु उसे रोक नहीं सकता, Grave couldn't hold him. कब्र उसे थाम नहीं सकता, Hell cannot defeat him. नरक उसे हरा नहीं सकता। Jesus died on the cross. यीशु उस क्रूस में मरे, They buried him. उसको उन्होंने दफन But किया, that story never ended there. परंतु वो कहानी वहाँ खत्म नहीं The हुआ। third day, तीसरे दिन he arose from the dead. वो मृतकों में से जी उठा And he is still alive. और आज भी वो जीवित है। Death couldn't defeat Jesus. मृत्यु भी यीशु को हरा ना पाई। Whomever death took, hell took, जिसको भी नरक ने लिया, मृत्यु they ने लिया, didn't give it back. उनको उन्होंने वापस ना लौटाया, But they couldn't defeat Jesus and hold them back. परंतु उन्होंने यीशु को पकड़ ना पाया, उसे रोक ना पाया। The son of David is the son of God. ओ दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, He won over hell. वो नरक के ऊपर भी जो है, He took the keys of hell and death and rose again. और वो नरक में जाके उसने जो है नदलोक के कुंजियों को लिया और वो जो है फिर वो जी उठा। Grave cannot hold him back. कब्र उसे रोक ना पाया, No, grave couldn't hold him back. कब्र उसे रोक ना पाया, All थाम ना the पाया। great men and women who lived on this earth. सारे श्रेष्ठ लोग जो इस पृथ्वी पर जिए, If you go and see where they buried them, और आप अभी भी जाके देख सकते हैं कहाँ उनको दफन किया गया। all the tombs are closed. उनके सारे कब्र बंद पड़े But if हैं, you go to Israel, परंतु आप इजराइल में जाओ, if you go to the tomb of Jesus, यीशु के कब्र में जाके you देखो, will see that tomb is not closed, it is open. आप देखोगे कि वो कब्र बंद नहीं है, आज भी खुला है। And if you go and look into little closer, और थोड़ा करीब जाके देखोगे ना, and you will see there is a written word. आप देखोगे वहाँ कुछ लिखा है, He is not here, he has risen from the dead. वो यहाँ नहीं है, वो मरे हुओं में से जी उठा है। My dear, Jesus is still alive. प्रियो यीशु आज भी जीवित है। Where Jesus comes, जहाँ यीशु आते हैं, that things will come back to देखिए life. मरी हुई बातें वापस
जीवन में आ जाएंगी। When Jesus entered into a family, जब यीशु एक परिवार में गए, hope rises again. आशा वहां फिर जी उठी। When Jesus he entered into a broken heart, जब यीशु एक टूटे हुए हृदय में प्रवेश करे, joy will return. आनंद वापस लौट आएगा। When he enters into a difficult situation, जब एक मुश्किल हालात के अंदर वो जाते हैं, he turn it around. वो उसे मोड़ देते हैं। When he enters into a person's life, जब वो किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, their spirit becomes alive. उनका आत्मा जीवित बन जाता है। What people cannot fix, what money cannot give, Jesus can give you. देखिए, जो लोग ठीक नहीं कर सकते, जो पैसा ठीक नहीं कर सकता, वो यीशु कर सकता है। Jesus can bring back to life यीशु जीवन में वापस लौटा सकते हैं, because he is the resurrection and the life. क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन है। My dear, some of us hope dead. ओ, बहुत सारे लोगों का हो सकता है आशा मरा हुआ है। I mean, maybe doctors gave you a life date for your हो life. सकता है डॉक्टर ने आपको अपने जीवन के लिए तारीख निकाला होगा, Expiry date gave. एक्सपायरी डेट आपके But लिए my बोला dear, the होगा, life and resurrection is here. परंतु जीवन पुनरुत्थान यहाँ मौजूद He है। can restore what you lost. जो तूने खोया है वो उसे लौटा सकता है। The Jesus who raised Lazarus after 4th day. वो यीशु जिसने लाजर को जो है चौथे दिन के बाद The Jesus वापस लौटाया, who raised the widow's son in Nain. ओ 9 के अंदर वो यीशु ने जिस मरे हुए बच्चे को उस विधवा स्त्री का पुनर्जीवित किया। The Jesus who raised the Cyrus daughter. ओ जिसने साइरस के पुत्री को जीवित किया, वो यीशु। He can restore you whatever dead things in your life. He can restore it. तेरे जीवन के अंदर कोई भी मरी हुई बात है तो वो उसको लौटा सकता है। Jesus is the King of Kings. यीशु राजाओं का राजा Our है। Jesus is not a one king among many kings. देखिए, हमारा यीशु बहुत राजाओं में एक राजा नहीं है, He is the king. वो राजा है। He is the King of kings. वो राजाओं का राजा, As a king, एक राजा होने के he नाते rules over every sickness. वो सारे बीमारियों पर राज करता है, He rules over every demon. सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर वो राज्य He करता है, rules over every nature. सारे प्रकृति के ऊपर वो राज्य He करता है, rules over death. वो मृत्यु के ऊपर राज He करता है, rules over nations and eternity. वो राष्ट्रों के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर राज्य करता है। Every knee shall bow down. सारे घुटने झुकेंगे, Every tongue must confess. सारे जीव मिलकर ऐलान करेंगे, Jesus Christ is the Lord. यीशु मसीह जो है प्रभु है। He is the Alpha and the Omega. वो अल्फा वो ओमेगा है, He is the beginning and the end. वो आदि वो अंत है, He is the wonderful counselor. वो सर्वोत्तम सलाहकार है, He is mighty God. वो सर्वशक्तिमान He is the परमेश्वर Prince है, of Peace and everlasting Father. वो शांति का राजकुमार अनंत काल का पिता है। He is a wonderful counselor for your confusions. तेरे हर एक भर्म के लिए वो सर्वोत्तम सलाहकार He है, is the mighty God for your battles. तेरे युद्ध के लिए वो सर्वश्रेष्ठ यो He लड़ने is the वाला है, everlasting Father for your wounds. तेरे घावों के लिए वो सर्वोत्तम पिता He है, is the Prince of Peace for your storms. तेरे हर एक आंधियों के लिए वो शांति का Maria, राजकुमार है। tonight we are going to pray. आज की रात हम प्रार्थना करने जा This रहे हैं। Jesus is going to come and hold our hand. आज वो यीशु आके तेरे हाथों को थामने जा रहा He है, is going to carry us on his वो shoulders. तुझे अपने कंधों में उठाने जा रहा He है, is going to restore our वो life. तेरे जीवन को पुनर्स्थापित He करने is जा रहा going है, to heal our wounds. वो हमारे घावों को ठीक करने जा रहा है, His life is going to come. वो जीवन आने जा रहा है। Are you ready? क्या तैयार है? Siliguri, are you ready to experience the mighty power of the King of Kings? अपोस्टल सर, जी एक बाबा है हाँ। जो देख नहीं सकते थे, अभी देख रहे हैं। हाँ, अभी देख रहे हैं। ये देख रहे हैं और हालेलुया, और यस। वो चल भी नहीं सक रहा था बिना हाँ। बिना लाठी का, भी बिना हाँ। लाठी के चल रहे हैं। अभी हमें अंकल आप देख पा रहे हैं? देखिए सको दी सेकंड तो है। आंटी है जी। और ये आंटी 7 साल से इनका
शरीर में बहुत पेन होता है जी। और ये नहीं चल पाती थी। जी। पर आज जैसे ही प्रार्थना हुआ वैसा उनका दर्द भी चला गया और वो चल पा रही है। हालेलुया। बता रही है जी। इनका 1 साल से जी। इनका किडनी में जो स्टोन पाया गया जी। था और यूरिन में इन्फेक्शन था जी। और बहुत इनका पेट दर्द हो रहा था। जी। पर आज जैसा ही प्रार्थना हुआ वो पेट दर्द पूरा गायब हो गया। आमीन। ये सच्चे पूरा गायब हो गया। बता रही है जी। इनका किडनी में कुछ इन्फेक्शन हुआ था जी। और वो दर्द के कारण वो बैठ नहीं पाती थी। जी। तो अभी वो बैठ पाती है, उठ पाती है, उसका दर्द भी गायब हो गया। आमीन। हालेलुया। कब से वो दर्द था? 1 महीना। अभी अच्छा है, बिल्कुल चंगा हो गया। कौन चंगा किया आपको? हालेलुया। कम ऑन, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें।